That is a better. तो जना कि आपको कोर्स आपको शीट में कोर्स लिखा होता है लिखा तो कराटे से मिलता कैसे आपकी ये अगर students not interested that is she can't she's asking for a refund for a course that she buys all this for the pay किया है तो हम 2 महीने बाद कैसे fund आप आपको क्या चाहिए आपको अटेंडेंस शीट चाहिए ना आपको अटेंडेंस शीट चाहिए मैं आपको शीट का एक्सेस दे रहा हूँ इसमें सब शेड्यूल्स का कितनी क्लासेस कितनी हुई है आपके पास है तो एक्सेस चुनावी के लिए हम मैं कह रहा हूँ कि आपके पास है तो एक्सेस शीट का ये शीट खोलिए मैं आपको व्हाट्सएप कर दिया इंस्ट्रक्टर्स एंड कोर्स मास्टर शीट तो लिया कृतिका इसमें आपको कृतिका संजना are you joining the session today तो आप इसमें जाओगे yeah okay sure क्लास साइकिल शीट yeah definitely क्लास साइकिल शीट में आप अगर फिल्टर लगाओगे yeah okay so hi Prerna hi Tulya can you please turn on your cameras ठीक है प्रैक्टिस इससे आपको एक्चुअल टाइपिंग नहीं ये क्लास हुई है कि हमने अटेंड की नहीं की सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन थी क्लास हुई नहीं क्लास अगर नहीं हुई वो हमारी गलती है उन्होंने अटेंड नहीं करी वो उनकी गलती है You're on mute, Sanjana.
Hello. Hi. Hi Hi Kritika. प्रेरणा, how are you? I'm good. आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक. आज थोड़ा सेशन का टाइम वो कर दिया चेंज. I'm sorry, Kritika, can you please repeat? I guess आज टाइम चेंज कर दिया. It was 1, right? Oh, I think so too. It was, but वही है ना कि we said कि we'll be joining at the same time. Okay, yeah, because 1 o'clock का टाइम था ना सेशन का. I think we talked about 12 yesterday. Like if we can meet at 12, share our what we have written. If we have No, you written just anything. told that you have to share the story with the Sanjana by 12 and then we'll join at 1. Okay, I think Either way works. If you're comfortable in that, that also works. No if you- problem. I guess we can this continue. was we can. नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं not इधर डाल दो. Atulya, have you written your story? ठीक है. Hi, Atulya. Did you come up for the what discussion from here? अतुल्य आप हमारे साथ हो. ठीक है. कुछ any positive comment, a negative thing, a positive comment बताइए. It's okay. I think we can continue. Okay. कृतिका आपने कुछ लिखा है, अगर नहीं भी लिखा है क्योंकि अभी इससे कुछ तो चलेगा, आप बता सकते हो. Hi, Atulya. इसके की तारीफ कर रहे हैं कि टीचर की तारीफ कर रहे हैं, किसकी तारीफ? तो आपने कुछ लिखा है अतुल्या? नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं लिखा है. मैम Okay. No worries, no worries. आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज मुझे थम्स अप दे दीजिए. यस मैम. Because हमारा डिजिटल ऐप है. First Cool. Thank you. प्रेरणा, I was thinking कि पता भी कि ऐप जैसे अभी अतुल्या ने कुछ नहीं लिखा है, I don't think कृतिका ने भी कुछ लिखा है, तो we can थोड़ा सा ताकि फ्लो में आ जाए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कर लेते हैं. Okay. Do you want to lead that? Yeah, or do you want? I think we can. Stream of conscious a writing thing, right? हाँ, right. Or writing वाला. which one do you want to do? नहीं, the writing वाला, and then we can probably even discuss सबने जो लिखा है. Okay. It will work also if we don't have anything written. We will just read. Can you do one thing? I'm so sorry, I'm getting a lot of speeches से आवाज. So yeah, thank you. I just can you do one thing? Can you present that story I shared with you in the morning? So we can just read that and like talk about like what we got from that story. Kritika, I would really appreciate if you can switch on your video because then I can see. Okay, please. Not here. अतुल्य, आपके पास आपकी कॉपी और आपकी पेंसिल है? मैम अभी नहीं है, मैं लेकर आता हूँ. ओके. Okay, cool. Can I not have the, can we only have the photograph? I think my comment is also coming out. Like, I am confused.
You can just download it and present it. Yeah, works. We will wait for 2 minutes and then we'll start. मैम हमको क्या करना है? तो हेलो अतुल्या, तो व्हाट हम अभी क्या करेंगे, अभी आपके सामने एक स्टोरी आपको दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पे। यस तो हम उस 5 मिनट लेंगे और आराम से उस स्टोरी को पढ़ेंगे, ठीक है? और जब आप पढ़ लेंगे तो आप बताएंगे कि हाँ मैंने ये कहानी पढ़ ली। हाँ मैम। संजना, can you check with Kritika, is she joining back or not? Thank you. So she's in the middle of something. So if she'll be able to join, she will. Otherwise, I'll share the recorded session. Okay, perfect. हो गया मैम, पढ़ लिया। वेरी गुड अतुल्या, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं आपसे जो हमने कल सब चीजें करी थी, हमने इतनी सारी चीजों के बारे में बात करी थी, अब हम इस हाँ अतुल्या बोलो, आप कुछ कह रहे हो? यस मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही थी बच्चे। एक मिनट। अतुल्या आप कुछ कह रहे थे? नो मैम, वो मेरा एक टेबल है ना, वो मेरे ना पैर में लग गया था। ओह अच्छा, तभी आ ओके, अब आप ठीक हो? यस मैम। ओके, तो अभी हम जानेंगे कि आपको इस कहानी से क्या समझ में आया। आप बता सकते हो? बहुत इजी स्टोरी है, आपको क्या लगा, क्या चीज आपको समझ में आई? मैम उसमें वो सीख थी कि क्या बोलते हैं, आप दूसरों को मूर्ख मत बनाइए, और आप भी किसी को मूर्ख मत बनाइए। वेरी गुड, दैट इज द मेन जिस्ट ऑफ द स्टोरी। आप, क्योंकि हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी कल, हमने जानी थी, तो आप बता सकते हो कि स्टार्ट ऑफ द स्टोरी किधर से होता है? मैम एक बार एक कौवे ने वेरी गुड,
पूरा सेंटेंस पढ़ दो अतुल्या। यस मैम। एक बार एक कौवे ने एक दुकान से बड़ा चोंच में लेकर भाग गया। वेरी गुड। तो इसके अंदर हमने कल बात करी थी, ये एक्शन से शुरू होना चाहिए। तो Yes. जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा, स्टोरी की स्टार्टिंग ही एक्शन से शुरू हो रही है कि कोए ने चुरा के बड़े को और वो वहां से भाग गया। ये दिस इज एन एक्शन। तो हम इसी तरीके से जनरली अपनी कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। अब आते Yes, हैं ma'am. बॉडी ऑफ द स्टोरी में। हमने कल जाना था कि एक बिगिनिंग होती है, एक मिडिल होता है और एक एंड होता है, और बीच में क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट। जो हमारी मिडिल होता है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो आप बता सकते हो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या था तुल्या, किस चीज पे स्टोरी कहाँ पर बीच में आती है, मेन मुद्दा क्या था स्टोरी का? मैम इसी बीच एक लोमड़ी ने कौवे के चोंच में बड़ा देख लिया और तुरंत वह कौवे की बढ़ाई करने लगा कि कौवा कितना सुंदर है, उसके पंख कितने सुनहरे हैं और वह बहुत अच्छा गाता है। तो अब मुझे तुल्या बताओ, ये लोमड़ी ने क्यों बोला? मैम ताकि वो कौवे से वो बड़ा छीन सके। यस, तो यहीं पे हमारी कॉन्फ्लिक्ट आती है। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि लोमड़ी को भी वही बड़ा चाहिए जो कौवा भी चुरा कर लाया है। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट। अब कैसे बता पाओगे कि इसका रेजोल्यूशन क्या था, ये खत्म किस तरीके से हुई? ये खत्म हुआ कि अ, अ, सीख दूसरों को मूर्ख मत बनाओ वरना तुम खुद मूर्ख बन नहीं, जाओगे। ये तो आखिर की वो सीख दी हुई है। कहानी किस अच्छा। तरीके से खत्म हुई? कौवा आत्ममुग्ध हो जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, उसके चोंच से बड़ा नीचे गिर आया और लोमड़ी उसे खा के वह से चला गया। कहानी से सीख दूसरों को बस ओके अतुल्या, वेरी गुड। यही जो आपने अभी आखिरी सेंटेंस पढ़ा कहानी का, दैट इज द एंड। कि क्या हुआ कि वो बड़ा गिर गया कौवे के मुंह से और लोमड़ी ने वही बड़ा उठाकर वो वहां से भाग गया। जो लोमड़ी थी वो वहां से भाग गई, ठीक है। तो यहीं पर हमारा एंड होता है। एंड किस तरीके से होता है? कॉन्फ्लिक्ट ये थी कि लोमड़ी को किसी तरीके से भी उसका बड़ा निकालना था, और वो बड़ा उसने उसकी तारीफ करी, बोला कि तुम इतना अच्छा गाते हो। और जैसे ही कोए ने अपना गाने के लिए मुंह खोला, उसका बड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी का काम वहीं पे समाप्त हो गया और वो बड़ा लेकर भाग गया वहां से। तो यहाँ पे आता है हमारी कहानी का एंड, ठीक है। तो हमने 3 चीजें देख भी ली, बिगिनिंग मिडिल और एंड, जिसके अंदर हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया और हमारा रेजोल्यूशन भी आ गया कि किस तरीके से कहानी ने एक अलग मोड़ लिया जहां से वो शुरू हुई थी, ठीक है। अतुल्य, आपको समझ में आया? अब आप मुझे बता सकते हो कहानी के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? कहानी के कैरेक्टर्स कौवा और लोमड़ी है। वेरी गुड। कहानी के कैरेक्टर्स बस 2 हैं, कौवा और लोमड़ी। उन्हीं दोनों के बीच में जो हमारी पूरी कहानी पूरा रहती है, ठीक है। उसके अलावा कोई और नहीं है। अब मुझे बता सकते हो कि कहानी कहाँ पर स्थित है? हमने 5 क्वेश्चंस की बात करी थी। कहानी कहाँ पर है? मैम कहानी एक पेड़ पे है और एक दुकान पे। इसके अंदर हमारे पास एक वर्ड भी लिखा हुआ है ऊपर पहले सेंटेंस में। मैम दुकान है। यस, दुकान के आसपास कहीं पर है। वेरी गुड। और एक पेड़ है दुकान के आसपास। यस, वेरी गुड। तो ये कहाँ पर स्थित है? दुकान के आसपास कहीं पर पेड़ है और उस पेड़ के नीचे लोमड़ी खड़ी है, ठीक है। Yes. यहाँ पर हमारी कहानी स्थित है। वेरी गुड। और ये आपको क्या लगता है कि कब स्थित है? क्या समय हो रहा होगा? क्या
टाइम क्या हो रहा होगा? मैम समय दोपहर या सुबह का होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। हमको समझ में आ रहा है कि क्योंकि अगर जो बड़े बने हैं, जो बड़ा जो हमारे पास चीज है जो कब मिलती है दुकान में, वो इसी टाइम पर मिलती है, दोपहर या सुबह के टाइम पर। और वेरी गुड, आप ये भी समझ गए कि कब, व्हेन और वेयर हमारा हो चुका है। तो आप अब बताओ कहानी किस बारे में है, यानी व्हाट? मैम कहानी इस बारे में है, दूसरों को मूर्ख मत बनाओ वरना तुम खुद मूर्ख बन जाओगे। यस, वेरी गुड। यहाँ पर आपने फिर से करेक्ट बिल्कुल आंसर दिया कि कहानी में कि एक दूसरे को, जो पहले कौवे ने दुकान वाले को मूर्ख बनाया, वो उससे चुरा कर ले आया, फिर उसके बाद लोमड़ी ने कौवे को ही मूर्ख बना दिया। ठीक है, अब हाँ। आता है हमारा ये कि कैसे, हाउ, कैसे लोमड़ी ने मूर्ख बनाया कौवे को? मैम लोमड़ी ने उसको बढ़ाई दी, जैसे कि कौवा कितना सुंदर है, उसके पंख कितने सुनहरे हैं और वो Yes. बहुत अच्छा गाता है। यस, वेरी गुड। तो यही वो बड़ाई कर करके उन्होंने उसका मुंह खुलवाया, और मुंह जैसे ही खुला वो बड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी वहां से चंपत हो गई बड़े को लेकर। वेरी गुड, आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। जो हमने कल सारे क्वेश्चंस करे थे, वो सारे क्वेश्चन इस छोटी सी, इसके अंदर छोटी सी स्टोरी है, सब कुछ चीजें इसके अंदर आंसर भी हो गए। ठीक है, हमारा कैरेक्टर्स हो गया। एक स्टोरी है क्या? क्या तुल्या? मैम मुझे बहुत मजा आया, ऐसी एक स्टोरी है क्या? वही अभी मैं आपको बाद में संजना दीदी के उससे आपको बहुत सारी स्टोरीज भेज दूंगी, जो आप आराम से पढ़ना, और आराम से इसके जो सब हमने ये सारी चीजें करी है ना, हमने इसको तोड़ा, हमने जाना कि ये कहाँ पर स्थित है, क्या समय हो रहा होगा, क्या मेन एलिमेंट है, किस बारे में ये कहानी है, और ये कैसे अपने उस तक पहुंच रही है। ये सारी चीजें जो अब आगे आप पढ़ोगे, उन सब चीजों में लगानी है आपको। अतुल्य, आपको समझ रहा है? अतुल्य, आप सुन पा रहे हो मुझे? यस मैम, मैं आपको सुन पा रही हूँ। यस। तो जो सारी चीजें हमने कल आपको लिखवाई थी ना, कल जो आपने नोट करी होंगी जो सारी चीजें, वो सारी चीजें अब से हम जो भी आगे आने वाली किताब पढ़ेंगे, हम कोई भी शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे, वो सारी चीजें हम हाँ बोलो अतुल्य। मैम आप वो 5 क्वेश्चन फिर से रिवाइज करेंगे, मुझे याद नहीं है। अच्छा, आप अपनी कॉपी में लिखो व्हाट, व्हाट, व्हाई, व्हाई, वेयर, वेयर, व्हेन व्हेन, एंड हाउ। हाउ। यस यस, मैम। ठीक है। हाँ। व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों, वेयर माने कहाँ, व्हेन माने कब, और हाउ मतलब कैसे। कैसे? यस। तो आपको अगर हिंदी में चाहिए हो तो आप मुझे बता दो, मैं हिंदी में भी आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी। यस। ठीक है, आपको समझ में आ गया? हाँ मैम। तो अब आप अपनी कहानी जब लिखोगे या आप कुछ भी लिखोगे, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो अब हमने जैसे अभी एक स्टोरी पढ़ी, मेन एक्टिविटी बच्चे ये थी कि हम ये जाने कि आपने जो लिखा है उसके अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है अतुल्य, आप स्टॉप प्रेजेंटिंग। संजना, थैंक यू सो मच। ओके, तो अभी हम थोड़ी चीजों की बात करेंगे अतुल्य, जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। सबसे जरूरी हैबिट्स, क्योंकि आप अभी बडिंग राइटर्स हो या फिर अभी आप स्टोरी टेलिंग करना शुरू कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चीजें अपने ध्यान में रखनी है। ओके अतुल्य। यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप अपनी कॉपी में लिखोगे रीडिंग। आपको रीडिंग। बहुत, यस, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी पहले।
लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चीज लिखना चाहते हैं, किस तरीके से लिखना चाहते हैं, कुछ ऐसा सा ही लिखना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि इतनी सारी चीजों के बारे में पहले से ही लिखा जा चुका है, तो आप क्या अलग कर रहे हैं। तो आपको पहले पढ़ना होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें पहले लिखी जा चुकी हैं। अतुल्या, मेरे को क्वेश्चन आपका सुनाई नहीं दिया, फिर से रिपीट करोगे? मैं बोल रही हूँ कि कुछ राइटर्स थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर से भी लिखते हैं। बिल्कुल, यस, वेरी गुड। कि वो न्यूज़पेपर की चीजें पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि अच्छा ये वाली चीज इस दिन हुई थी, इस तरीके से हुई थी, और वो उसी तरीके से अपनी कहानी को डेवलप करते हैं। तो हम अलग अलग चीजें पढ़ते, अलग चीजों से, जैसे हमने कल भी बात करी थी, हम अलग अलग चीजों से इंस्पिरेशन लेते हैं। हम जानते हैं कि अच्छा ये ऐसे लिखा गया है, तो हम अपनी इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत सारी चीजें पढ़ें। तो एज अ राइटर आपको ये हैबिट बनानी चाहिए कि आप बहुत सारी चीजें पढ़ें, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो आपकी किताबें हो, चाहे वो बाहर की किताबें हो, आपको हर चीज पढ़नी चाहिए। ओके अतुल्या, दैट इज योर फर्स्ट हैबिट दैट वन शुड डू। अतुल्या, आपने लिख लिया उसे? रीडिंग, ये वेरी गुड। अब उसके बाद हम लिखेंगे हमारी दूसरी हैबिट, विच इज राइटिंग। तो कोई भी आपको स्टोरी, क्या होता है कभी कभार हम ऐसे बोलते हैं कि हाँ मेरे दिमाग में एक स्टोरी है, मुझे पता है कि ऐसा होगा और कुछ ऐसा हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर मैम कहानी खत्म क्या हो जाएगी, बोलते हैं, पर वो दिमाग में क्या बोलते हैं मैम, और जब हम लिखते हैं पेपर में कोई बुक को, तो उसमें क्या बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, धन्यवाद जो जिन्होंने हमको बहुत हेल्प किया है ये लिखने में। यस, वो एक्नॉलेजमेंट्स कहते हैं उन्हें अतुल्या, वेरी गुड। वो जब हम पूरी किताब लिख देते हैं, हम पूरी कहानी पूरी लिख देते हैं, उसके बाद हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि इन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया। पर उससे पहले ये जरूरी है कि आपकी जो कहानी है, जो आपने सोचा है दिमाग में, जो आपने बोला है कि अच्छा इस तरीके से कुछ कुछ होगा, उसे लिखना बहुत जरूरी है। और फिर उसको फिर आप पढ़ोगे, वो आपका रफ ड्राफ्ट होगा, फिर उसको आप फाइनल करोगे, तो आप दूसरी बार लिखोगे। तो आपको लिखना, जो हैबिट ऑफ राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कुछ भी दिमाग में आ रहा है, द हैबिट ऑफ राइटिंग लिखोगे अपने आप की कॉपी में, तो उसको बार बार आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा, ओ इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ओ इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ओ इस चीज की तो जरूरत ही नहीं है, तो ये वाली चीज कट भी सकती है। तो आप बार बार अपनी कहानी को लिखोगे। ओके अतुल्या, समझ में आया आपको? यस मैम। ओके, वेरी गुड। द थर्ड हैबिट, जो हम थर्ड हैबिट जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे, उसका नाम है रिविजन। रिविजन बस पढ़ाई जब हम करते हैं और हमारे पेपर होते हैं, उसका रिविजन ही नहीं होता है। जब हम राइटिंग भी करते हैं, जैसा अभी मैंने बताया, फर्स्ट ड्राफ्ट बनता है, पहले पहले आप कुछ चीज लिखते हो, फिर उसके बाद आप उसके अंदर आपको पता चलता है कि ओ अच्छा इसमें कुछ कुछ गलतियां हैं, या फिर कुछ कुछ चीजें हैं जो आप बदलना चाहते हो, तो आप उसी चीज को बदल कर, थोड़ा सा चेंज कर कर उसी का सेकेंड ड्राफ्ट बनाते हो। तो क्या कहते हैं, ड्राफ्ट्स कहते हैं बच्चे उसको। आप अलग अलग अलग, आपका जो पहला ड्राफ्ट होता है वो आपके आखिरी ड्राफ्ट में बहुत ही अंतर होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप बार बार उसमें चेंजेस करते रहो अपनी कहानी में, आप लिखना ना छोड़ो। ओके अतुल्या, दिस इज द थर्ड यस मैम। हैबिट। ओके, और आपकी, यस, रिवीजन। यस वेरी गुड, आपकी एक और हैबिट है जो फिक्शनल चीजों और नॉन फिक्शनल दोनों, अगर आप कैसी भी चीजें लिखते हो, अगर आप ऐसे कि दिमाग से निकला कुछ इमेजिनेशन आप लिख रहे हो, उसके अंदर भी हमको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसे कहते हैं रिसर्च। तो हमें, हम कुछ भी लिखना चाहते हो, हम जानवरों के बारे में लिखना चाहते हो, हम आदमियों के बारे में लिखना चाहते हो, हम फेरीज के बारे में लिखना चाहते हो,
हम किसी भी चीज के बारे में लिखना चाहते हैं, हमें उसके पीछे की जानकारी पता होना चाहिए, जिसके लिए हम चीजें पढ़ते हैं, हम दूसरों से पूछते हैं क्या आपको इन सब चीजों के बारे में पता है, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए ये चीज समझने के लिए। तो आप क्या करते हो उसके लिए? रिसर्च। आप जानते हो अपने सब्जेक्ट को, आप समझते हो कि क्या क्या चीजें रहती हैं पीछे और क्या क्या चीजें आपको और समझने की जरूरत है। तो हम क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में? रिसर्च। तो दीज आर द 4 हैबिट्स जो आपको which makes you a very good writer. मैम कुछ लोग मतलब बड़े हो अतुल्य आप म्यूट पे हो। मैं बोल रही थी कि मैम कुछ लोग अगर बड़े होते हैं तो वो अपने पूरे जीवन की कहानी लिख देते हैं जो उनके पास मेमोरी सेव रहती है। मैंने भी बहुत ऐसी बुक पढ़ी है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की एक बुक है उनकी, उसमें पूरी जानकारी है कि वो बिल्कुल कहाँ पढ़े, वो क्या करते थे। यस, जिसको कहते हैं अतुल्य आत्मकथा, यानी बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी भी लिखते हैं और दूसरे लोग भी किसी और की बायोग्राफी जब लिखते हैं तो उसको बायोग्राफी बोल जाता है। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। आप इतने छोटे हो अभी, आप अभी से ही लिखना शुरू कर सकते हो अपने बारे में कि आपकी जिंदगी किस तरीके से चलती है, आप क्या क्या करते हो, और ये कंटिन्यूअस हैबिट बना सकते हो जब तक आप बहुत बड़े हो जाओगे तब तक। तो आपके पास आपका एक कलेक्शन होगा कि मैं किस तरीके से बड़ी हुई हूँ, क्या क्या मेरे साथ हुआ है। इसी तरीके से अब्दुल कलाम के पास भी इतना सारा रिकॉर्ड था क्योंकि वो भी लिखा करते थे। जब वो बच्चे थे तब वो लिखा करते थे मैंने क्या क्या किया, मैं कॉलेज किस तरह से जाता था, मैं स्कूल किस तरीके से जाता था। विंग्स ऑफ फायर पढ़ी होगी शायद अतुल्य आपने, क्योंकि उनकी वही बायोग्राफी है। फायर पढ़ी है, पर उनकी एक बुक है ब्लूजम। ब्लूजम, यस, वेरी वो गुड। आपने आपने वो भी पढ़ी है? पढ़ी नहीं, पर वो मेरे पास है। पर उनकी एक मतलब वो वाली बुक पढ़ी, मतलब उनकी ओके आत्मकथा पढ़ी है। ओके, वेरी गुड। तो तो आप ऐसे ही जैसे आपको पता चला क्योंकि आप एपीजे अब्दुल कलाम मतलब सॉरी, वो उन्होंने खुद लिखी है ये बुक। यस, उन्होंने खुद लिखी है, उनके हाथों से, उन्होंने अपनी हाथों से ये सारी चीजें लिखी हैं। उनका बेसिकली उन्होंने उनकी जिंदगी में उन्होंने जो जो चीजें करी हैं उसके बारे में उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। तो अलग अलग तरीके की किताबें होती है, जैसे तुल्य आपने बताया अभी आपने आत्मकथा पढ़ी है, फिर शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, फिर नॉवेल्स होती हैं। नॉवेल्स के अंदर अपनी अपनी जॉनरेज होते हैं, जिसके अंदर आप समझते हो कि ये एडवेंचर है, ये रोमांटिक है, ये एपिक बैटल, एक नॉन फिक्शन होता है, फिक्शन होता है। बहुत जरूरी है कि हम सारी चीजें पढ़ें और सब चीजों के बारे में जानें। ओके, तो हमारा यही काम है। हमने जो 4 चीजें अभी लिखवाई हैं आपको वो अपनी लाइफ में उसको, उन चीजों को करते रहना है, तभी आप एक अच्छे राइटर या फिर एक अच्छे स्टोरी टेलर बन सकते हो। ओके अतुल्य, और जो हमने एक्सरसाइज करी थी अभी अभी एक कहानी को लेकर, उसके अंदर जो हमने छोटी छोटी चीजें जानी थी कि अच्छा ये कैरेक्टर्स है, ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आपने लिखी। तो आपने वो 5 क्वेश्चंस लिख लिए है ना अपनी कॉपी में? तो वो 5 क्वेश्चन आप हर बार जब भी कुछ पढ़ोगे, जब भी कुछ लिखोगे, तो बार बार उन 5 क्वेश्चंस को ढूंढोगे वहां पर कि कहाँ ये 5 क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं, कहाँ कौन सी जगह है जहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे और यही यहाँ पर हम ये सारी चीजों को उनको प्रैक्टिस करेंगे जो सारी चीजें अभी हमने सीखी है। ओके अतुल्या, आपको समझ में आ गया अतुल्या? कैन आई गेट अ थम्स अप? यस, वेरी गुड। तो बच्चे, यही थी मेन स्टोरी टेलिंग के बेसिक्स और यही होते हैं स्टोरी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग के। तो आप इन्हीं चीजों को ध्यान में रखिए
और आप एक बहुत बहुत अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं। अभी मैं आपसे कहूंगी कि आप प्लीज कुछ लिखना स्टार्ट करो, जैसा हमने पिछली बार कहा था। तो आप एक हफ्ते बाद संजना दीदी को या फिर आप अपना ड्राफ्ट भेज सकते हो कि आपने क्या लिखा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये सब चीजें इसमें हैं और ये सब चीजों पर आप और काम कर सकते हो। तो दिस इज योर होमवर्क अतुल्या, दैट यू हैव टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ योर ओन। आपको खुद आपके हाथों से खुद अपनी इमेजिनेशन का यूज करते हुए एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। ओके? इमेजिनेशन की सॉरी अतुल्या, आपकी आवाज आप मैं जिस बोल तरीके से रही भी हूँ आप जिस तरीके से एलिस इन वंडरलैंड भी एक इमेजिन वाली कहानी थी ना? यस, वेरी गुड। एलिस इन वंडरलैंड इज अ, वो सब था। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एलिस इन वंडरलैंड इज ऑल्सो अ फिक्शनल स्टोरी, जो खुद एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर होती है। पहले वो एक नॉर्मल वर्ल्ड में होती है एलिस, और उसके बाद वो इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है। आप वैसा कुछ लिखना चाहो वैसा कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? तो आपके पास एक हफ्ते का टाइम है अतुल्या। एक हफ्ते में आपको बस एक पेज, आई ओनली वांट 1 पेज, आप उसको बाद में अपना जितना भी आप चाहो उसके बाद बढ़ा सकते हो। एक हफ्ते का टाइम है आपका, यही होमवर्क है कि आप जब वो चीज लिख लो तो आप संजना दी को भेज दो। ओके? ओके, परफेक्ट। और जो भी बच्चे ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या फिर जिन्होंने जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, उनका भी सेम होमवर्क है कि आपको कुछ अपने अपने दिमाग से, अपनी इमेजिनेशन से कुछ एक अच्छी सी चीज क्रिएट करनी है। आप चाहे उसका एंड ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको एक जगह से शुरू करना है और एक पेज के एंड तक लिखना है। वो देखते हैं वो आगे किधर जाता है। ओके, सो हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं स्टोरी राइटिंग की। आई होप आप सब ने अपने पॉइंटर्स लिख लिए होंगे। अगर आपको कुछ भी, अगर आपको जरूरत होती है उन पॉइंटर्स की, आपको लिखे हुए पीडीएफ वर्जन या फिर आपको नोट्स चाहिए, तो आप संजना दी से मांग सकते हो, वो मुझसे ले लेंगी, या फिर उन्होंने, वो खुद भी नोट्स बना रही थी क्योंकि मैंने देखा है, तो वो आपके साथ वो भी शेयर कर लेंगे। ओके अतुल्या, हम यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। बाय बाय। Bye, Sanjana, do you ma'am. want to say something? Yeah, thank you so much, Prerna. It was really a wonderful session, both today and yesterday. And I think Atulya और कृतिका और जो बाकी बच्चे सबको अच्छा लगा। And अतुल्या और मैं definitely आपके साथ एक हफ्ते बाद अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, right अतुल्या? Yes, ma'am. Yay. Wonderful, wonderful. So okay, thank you so much. Bye Bye bye. bye.